about new TDS sections. So all step describe sections 192 describe on salary sections. So let's again अच्छे से हम लोग समझेंगे जो TDS जो सैलरी का सेक्शन है TDS का उसके बारे में बात करेंगे। TDS सेक्शन 192 TDS सेक्शन 192 के अंतर्गत TDS ऑन सैलरी पे जो TDS करते हैं उसके बारे में हमें इस लेसन में ये पता चलेगा। तो 192 any person responsible for paying any income chargeables under the head salary shall at the times of the payments deducted income tax on the amounts payable at the average rate including tax completed on the basis rest of the force financial years which is the payments made it on the estimate incomes excess under the half this had for the फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब ये है जो आप सालाना इस सेक्शन के अंतर्गत सैलरी जो स्लैश बने हुए हैं उसको आप क्रॉस कर रहे हैं तो इस पे आपको फाइनेंशियल ईयर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा या मंथली वाइज भी कर सकते हो आप मंथली वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं नहीं तो फाइनेंशियल ईयर में एक साथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 192 ये याद रखना 192 के अंतर्गत ही सैलरी का जो स्लाइस बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप TDS पे कर सकते हैं। और इसके आगे चलते हैं। A1 क्या कहते हैं देखो A1 कहते हैं without prejudice to the provisions contained in the subsections 1 responsibility for the paying income nature and the reserve with the providing any the money mandatory payment refer to the causal section 2 of the section 7 at the paying optional। और नीचे चलते हैं ये सब आप वीडियो को होल्ड करके भी पढ़ सकते हैं। इधर देख लेते हैं कुछ सेक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ द डिडक्शन फॉर द पेइंग टैक्स अंडर द सबसेक्शन 1 subsections 1A-B the cases of B persons being of the eligibility startup refers to the sections 80 IAC responsible for the paying any income and the assess। और कोई भी इनकम ऐसे हो जो एक्सेस है तो उसका भी आप TDS सेक्शन के द्वारा पेमेंट को डिडक्ट कर सकते हैं। TDS का पूरा फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका बहुत ही सारे सेक्शन है। With the responsibility to tax deductions U/S 192 or response paying salary of the response to the deducted TDS on the income chargeables under HUF partnership firm companies cooperative societies trust and other artificial juridical persons have to the deducted TDS on salary। TDS जो कटेंगे जितने भी आप ये संस्थाएं के बारे में जाने हैं इन सारी संस्था का जो TDS है वो डिडक्ट किया जाएगा। With the pay any employee have paying the TDS U/S 192 for the applications of the section 192 that the most exist employees relationship between the payers and the paying director of the company is not employing at and as such of the TDS USA 192 on any the amounts paid the directors part-time directors on the company visiting the doctors are convert U/S 194J and not the cover 192 whole times directors who is the employees of the company hence
TDS Directive 192 is TDS Directive on the salary paid non-resident employee. जो एम्प्लॉय रेसिडेंट नहीं है, जो अदर कंट्री के एम्प्लॉय हैं, उसके बिहाफ पर यस TDS directed by the employer has the payment made on the non-resident employee 192. फिर भी उनका है TDS है, फिर भी कटेगा 192 के तहत, सेक्शन 192 के तहत फिर भी उनका TDS कटेगा. when to the directed TDS under सेक्शन 192. अब ये 192 है ला, हमेशा याद रखना, जो इन्हीं के सेक्शन के अंदर TDS का स्लाइस जो है काटे जाते हैं. Liability to the director at source shall the arise at the times of the actual payments on the salary, not at the times of the accrual. The employee is not required to deduct tax at the source when the salary has been not the paid. Merals credit to the account of the employees all as per the section 15. The salary is the taxable in the hands of the employees either at the times of the actual receipt or at the times of the accruals. Where is the alert? पांचवा है थ्रेशोल्ड लिमिट, और इसका जो टैक्स का लिमिट है वो क्या है और कितने पे नील हो जाता है, तो इसमें बता रहे हैं लिमिट के बारे में. नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अनलेस द एस्टिमेट सैलरी एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स. नो TDS 192 if the tax payables after retaining rebates 87A by the employees is nil. अब कुछ भी मिस्टेक के कारण या टाइम जो है, और TDS का जो टाइमिंग है ना, डेट, वो हमेशा हर मंथ 7 तारीख को ही रहता है, लास्ट डेट 7 तारीख. Rate of the under sections 192 6. Under sections 192 there is a no specified TDS rate. TDS to deducted at calculated according to the tax slab and rate. अब जो टैक्स स्लाइड है और कैसे क्या करता है, इसके बारे में हम देखते हैं. रेट और उसके जो प्रूफ लगते हैं एम्प्लॉय का, कितना परसेंटेज करते हैं, अगर पेन कार्ड नहीं अटैच है तो कितना परसेंटेज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं. TDS US 192 has been deducted at the average of the income compute on the basis of the rates in force during the financial year. The total tax to be deducted on the estimate income of the employees for the relevant financial years in the dividends by the numbers of months of his employment. The amount so achieved in the monthly deducted of tax at source. However, if the employee does not have PIN number, TDS shall be deducted 20% without the including health and the education case in the normal tax rate in the cases of the less than 20%. अगर किसी भी एम्प्लॉय का पेन नंबर, तो उनका 20% काटे जाएंगे, और जिस एम्प्लॉय का बाय चांस इंक्लूड है इसमें पेन नंबर, तो उनको स्लाइस वाइज जो परसेंटेज बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग काटे जाएंगे. ये देखो, आप स्लाइस देख लो. इनकम, सैलरी और चार्जेबल अंडर द 8 लाख सैलरी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द प्रेजेंट. सैलरी का स्लैब दिखाते हैं. ये बहुत ही बड़ा सेक्शन, ये जो है हर एक सेक्शन का आपको पार्ट देंगे, और ये आप सेक्शन देखें
ये सिर्फ सैलरी बेस का सेक्शन है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्लाइस है ये देखो, ये सिर्फ 192 जो TDS अंडर सेक्शंस है, सेक्शंस 115 BAC टैक्स रेट USA 115 BCA interested on the Violate Financial Act 2022। अब स्लाइड्स जो है इसी में चेंज कुछ हो गए हैं, तो फिर भी हम जो है 2022 से ही उठा रहे हैं डाटा। तो टोटल इनकम अगर आपका 2,50,000 से नीचे है या 2,50,000 से ऊपर है तो आप नहीं, अगर 2,50,000 से आप नीचे या 2,50,000 तक है तो आपका नील है, इसमें कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करने हैं। और 2,50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा हो गए और 5 लाख तक है तो 5% देना पड़ेगा आपको। 5 लाख के बीच में है तो 5 लाख 1 रुपये से लेकर 7,50,000 तक भी है सैलरी बेस, तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। 7,50,000 1 से भी लेकर 10 लाख के बीच है आपका सैलरी स्लैब तो 15%। 10 लाख 1 रुपये से लेकर 12,50,000 तक है तो 20%। 12,50,000 1 रुपये से लेकर 15 लाख तक है तो 25% TDS पे करना पड़ेगा। एवं 15 लाख से अगर ऊपर है तो 30% आपको पे करना पड़ेगा TDS। आपको TDS कैसे पे करते हैं ये भी दिखाएंगे। तो पहले आप सेक्शन, जो जितने भी सेक्शन हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं और उसके बाद जो है हम TDS कैसे पे करते हैं, तो जब हम पे करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी ये सेक्शन है TDS ऑन पेमेंट एक्यूमुलेट बैलेंस ड्यू टू द एम्प्लॉयज। अगर किसी कारणवश एम्प्लॉय का पेमेंट ड्यू मतलब रुक जाते हैं या बाकी रहते हैं तो सेक्शन 192A के तहत उनका डिडक्ट होगा। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ये रहा, हाइलाइट्स है। Threshold limit tax is not deducted. Average arranged amounts of the taxable component of the lump sum amount is less than 15%। 50,000 तक कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा उनका, और जब इससे ऊपर रहेगा तो उनका फिर डिडक्ट होगा। तो हम अभी इतना ही सेक्शन 192 कंप्लीट है हमारे। और आगे की जो सेक्शन चाहिए आप लोगों को तो हमें कमेंट करके बता देना।